Hello guys, today we are going to cover the most important MCQs from the chapter Electric Charges and Field, which is one of the most crucial topic for your class 12th exam as well as competitive exams like JEE and NEET. In this session, we will revise almost every major concept from Coulomb's law, electric field and Gauss law. So keep your notebooks ready, try to solve along with me and note down any tricky concept which I will discuss here. By the end of this lecture, you will feel confident to tackle any question from this particular topic. So let's get started with our first MCQ. 2-point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. Okay, so we have given two charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb, and the force of repulsion between them is 40 Newton. Now we have to add minus 5 microcoulomb to first charge as well as minus 5 microcoulomb to the second charge. So if I add minus 5 microcoulomb to this plus 3 microcoulomb, the new charge will become 2 microcoulomb, and here if I add minus 5 microcoulomb to this plus 8 microcoulomb, the new charge will become plus 3 microcoulomb. Okay, plus 8 minus 5 will become what? Plus 3. Okay, now we have to find the force of attraction between minus 2 microcoulomb and plus 3 microcoulomb. So imagine the force, or just consider the force between them is F dash. So all of us know the Coulomb's law is F is equal to K Q1 Q2 by R square. Okay, so here R is constant for both the cases. Here if the distance between this plus 3 and plus 8 is R, so the distance between this minus 2 and plus 3 is also R. So this R is constant here and K is also constant here. Okay, K and R both are constant. So we can write this statement as R square by K is equal to Q1 Q2 by F. Here the R square will go here, K will be divide R square and F will go to the denominator of Q1 and Q2. So R square by K can be written as Q1 Q2 by F. So what are the Q1 Q2s? They are the initial charges, and what is F? That is initial force. So this statement can be extended as Q1 dash Q2 dash by F dash. So what are Q1 and Q2 dash? They are the final charges that are minus 2 microcoulomb and plus 3 microcoulomb. And what is F dash? That is final force which we have to find. So put all the values here. Q1 and Q2, they are 3 and 8 microcoulomb. So this Q1 can be written as 3 microcoulomb, that is 3 into 10 raised to the power minus 6. So I think everyone of us know 1 microcoulomb is 10 raised to the power minus 6 coulomb. Okay, so this Q1 will be 3 into 10 power minus 6 into what is Q2? 8. That is 8 into 10 raised to the power minus 6, and it will be divided by the force, and force is what? 40 Newton. Now what is Q1 dash? Final first charge, that is minus 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 6, that is minus 2 into 10 power minus 6. What is Q2 dash? That is 3 into 10 raised to the power minus 6, and it will be divided by F dash. Okay, so this 3 into 10 power minus 6 will cancel 3 into 10 power minus 6, 10 raised to the power minus 6 will cancel 10 raised to the power minus 6, this 2 will cancel 8 4 times, this 4 will cancel 40 10 times. Okay, so from this statement we can write this F dash will be equal to 10 into minus 1, that is minus 10 Newton. So the final force between minus 2 microcoulomb and plus 3 microcoulomb will be 10 Newton minus 10 Newton. So option A is correct option. So let's go for the next. 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart, and a force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. So we have two charges, charge A and charge B. Charge A is plus Q, charge B is minus Q. Okay, so according to question we have to transfer the 25% of this charge from A to B. So if I transfer this 25% of charge A, the remaining charge will be 75% of the charge, that is Q, and this 25% will add to this minus Q. So the final charge on B will be minus Q plus 25% of charge Q.
Okay, so this 75 by 100 can be written as 3 by 4 of q. If we divide this the particular equation, multiply divide by 25, okay, this can be written as 3 by 4 q. And if I cancel this equation by 25, this particular stat by 25, 25 into 1, 25, 25 into 4 is what, 100. So 4 into minus q is minus q, 4q plus q, and divided by 4. So the final charge will be minus 4q plus q, that is minus 3q by 4. So what are the final charges we have now? 3 by 4 of q and minus 3 by 4 of q. Okay, so again, as we have discussed in first question, here also the distance is r, so distance between them also will be r. So we can use the statement from the first question also, that is q1 q2 by r square, q1 q2 by f can be written as q1 dash q2 dash of f dash. What are q1 and q2? That are the initial charges. What are q1 dash and q2 dash? Final charges. F is what? Initial force. F dash is what? Final force. So if you put all the values in this equation, okay, so what will get? What is q1 and q2? q1 is plus q, q2 is what? Minus q. Okay, so q into minus q, it will be divided by the initial force, and the initial force between them is F. Now what are the final charges? That is 3q by 4 of q and minus 3 by 4 of q. So this can be written as minus 3 by 4 of q into 3q by 4 into f dash. Okay, so the q will cancel q, this q also will cancel, q minus will cancel minus, and from here we can write this f dash. Okay, this f dash will go here, so this f dash will be 3 into 3 9, 4 into 4 16, and this f will go here, that is 9 by 16 of f. Okay, so the final force will be 9 by 16 times the initial force. So if we check the options, option C is correct answer here, that is 9f by 16. Let's go for the next. To charge a sphere separated at a distance exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the net force? What is the net force on each sphere? Okay, so we have given two spheres. Let us consider two spheres A and B. Okay, they have the force of attraction or repulsion between them is F. Now this whole system is going to be immersed in a liquid. Okay, it's going to be immersed in a liquid with dielectric constant 2. Okay, so the dielectric constant of particular liquid is what? 2. So let us consider again the Coulomb's law. The force depends on K, Q1, Q2 and R square. So अगर पूरे सिस्टम को मैं किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम मींस व्हाट, इंसुलेटेड मीडियम में अगर इमर्स करें, ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल चेंज हियर और व्हिच मे चेंज हियर? क्या चार्जेस चेंज होंगे? कभी नहीं चेंज होंगे। क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है? क्या नहीं। ओनली चेंज क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर? दैट इज k इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught. So here if I immerse the particular system in the dielectric constant of 2, okay, so the permittivity will get double. The permittivity get 2 times or double. So the final k or this k dash will become 1 by 4 pi epsilon naught into 2. So if we immerse any particular system in a particular dielectric medium, so its permittivity will get multiplied with the dielectric constant. So if the permittivity will get multiplied with the dielectric constant, then what will be effect on force? Okay, so from here we can see, okay, I'm writing the statement again. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Okay, so if this permittivity will get double, so what will be effect on this force? Is the force will get double or half? Yes, the force will get half. Why? Because this force is inversely proportional to the permittivity. So permittivity को अगर मैं double करूंगा तो force half हो जाएगा. Okay, so if the initial force is F और इसको किसी एक मीडियम में हम लोग इमर्स करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है?
2 है, या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग मान ले कितना इसको डायरेक्टली कांस्टेंट k है, सो द न्यू फोर्स विल बी F by k, and what is k? Dielectric constant. What is dielectric constant here? That is 2, so this k will replace 2, so F by 2. Okay, so final force between the spheres will be F by 2, so option A is correct option. Let's go for the next. 4 charges are arranged at the corners of ABCD as shown in the adjoining figure. The force on charge kept at the center O. Okay, so if we keep a charge on this center of this square, so we have to find the direction of force on this charge. Okay, so I think every one of us know the direction of force due to positive charge is radially outward, and due to negative charge it is radially inward. Okay, so इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा है? 4 चार्जेस, दैट इज प्लस क्यू, प्लस 2q, प्लस q एंड माइनस 2q. सो लेट अस कंसीडर द प्लस q विच इज केप्ट एट O. सो A के कारण, या A पे जो चार्ज रखा है दैट इज व्हाट? प्लस q. इसके कारण O पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. व्हाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? रेडियली आउटवर्ड. अगर रेडियली आउटवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी? रेडियली आउटवर्ड. सो ये जो यहां पर आपके पास आ रहा है, okay, so this is what the direction of force due to this positive charge which is kept at A. So we can write it is direction of A. Okay, now let us consider again this plus 2q charge. ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, ये भी कहां पर होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी. रेडियली आउटवर्ड होगी वो OB की डायरेक्शन में होगी या OD की डायरेक्शन में होगी? यस, इट विल बी इन OD डायरेक्शन, क्योंकि आउटवर्ड इस पॉइंट से आउट जाना है. ओके, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू चार्ज केप्ट एट B. ओके, नाउ कंसीडर पॉइंट C. Point C consists the charge plus q. Again, the direction of the force due to positive charge will be radially outwards. So this will be direction. This will be the what? Direction of force due to plus q kept at C. Now, last charge minus q at D. So the force, the direction of force due to negative charge is what? Radially inward. So ये जो direction D O की direction में होगा या O D की direction में होगा? Yes, it is in the direction of O D. Why? क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड होगा. इस फोर्स कहां होगा? इस चार्ज की तरफ होने वाला. ओके, सो अगर जहां हम लोग देखें, वी हैव 4 फोर्सेस, फोर्स A, फोर्स B, फोर्स C एंड फोर्स D. पहले हम लोग फोर्स A और C के बारे में बात करें. देखो, ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है. ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है. और अपोजिट होने के साथ ये एक दूसरे के इक्वल भी है. कैसे? चार्जेस इक्वल है यहाँ पर, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी इक्वल है. सो कैन आई से द फोर्स ड्यू टू A एंड द फोर्स ड्यू टू C आर इक्वल एंड अपोजिट. अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस, इट मींस पॉइंट O पे जो भी चार्ज रखा होगा उस पे A और C का जो टोटल इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा? 0. अब बचे कौन से फोर्स हमारे पास? ड्यू टू B एंड ड्यू टू D. अब देखो, B और D के कारण जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन लग रहे हैं. दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट नहीं है. दोनों कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में. और कौन से डायरेक्शन में? O से D की डायरेक्शन में या D से O की डायरेक्शन में? ये O से D की डायरेक्शन में आएगा या D से O की डायरेक्शन में आएगा? यस, O से D की डायरेक्शन में आएगा, D से O नहीं आ रहा. देखो, दोनों इस डायरेक्शन में आएगा. नेट फोर्स भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा. ओके, सो 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD. The force on the charge kept at center O is, the option first is 0, no. Along the diagonal AC, क्या AC की डायरेक्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. ओके, नाउ along the direction BD, क्या वो B से D की डायरेक्शन में आ रहा है? यस, देखो ये O से जो D है बेसिकली किसकी डायरेक्शन है? B से D की डायरेक्शन में है. सो द आंसर इज द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ BD. Okay, we can consider this statement perpendicular to side AB. No, so answer C, option C is correct. The next question is, electric charges of 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in the air at the corners of A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having the length of each side 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is, okay, so we have given
three charges which are kept at the vertices of an equilateral triangle. So just consider an equilateral triangle with vertices A, B and C. As per the question, 1 microcoulomb is kept at A, minus 1 microcoulomb is kept at B and 2 microcoulomb is kept at C. Okay, now we have to find the resultant force on the charge at C. So अगर C पे हम लोग resultant force के बारे में बात करें, so how many charges are there in particular in this system? This 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb. So if you consider this 2 microcoulomb, so how many forces are working on this 2 microcoulomb charge? Yes, two forces are working here. How? The force from the point A, the force from the point B. Okay, so what will be the direction of both the forces? Are they in same direction? Okay, let's check it. At point C, this A is positive charge. So what is the direction of force for positive charge? That is radially outward. Okay, for positive charge, the direction of force is what? Radially outward. So at point C, can I say that is the direction of force due to A? Okay, and we can write it as what? Force due to A on C. Okay, now on C, this minus 1 microcoulomb is also providing a force, that is minus 1 microcoulomb, and 2 microcoulomb also have a force, and this force will be in the direction of C to B or B to C. This will be in the direction of C to B. Why C to B? Because this is force due to the negative charge, and the force due to negative charge is what? Radially inward. So I can write it as what? FB. So on point C, we have two forces, that is FA and FB. Okay, so as we have learnt in 11th class, if two forces or two vectors which are co-initial vectors, okay, you know the meaning of co-initial vector. So let's discuss this topic on the blank screen. Okay, so in 11th we have discussed, that is vector law of addition, and we have two vector law of addition, that is triangle law of addition and parallelogram law of addition. So let's consider this parallelogram law of addition. ये हम लोग कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में. Okay, so what parallelogram law of vector addition says, if two co-initial vectors which initiates from the particular or common point, किसी एक कॉमन पॉइंट से एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग को-इनिशियल वेक्टर. ओके, इफ टू को-इनिशियल वेक्टर्स बिहेव्स एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ एनी imaginary parallelogram, then the diagonal of that parallelogram will be the resultant of two vectors. It means if I say this vector A, this vector B, and if I say this vector R, that is resultant. Okay, so this resultant will be the diagonal of the parallelogram which is made from these two adjacent side, two vector as a adjacent side, and the resultant is given by what? R is equal to in the root A square plus B square plus 2AB cos theta. And what is theta here? The angle between A and B. So same scenario is in our question. See, यहाँ पर ये दोनों कोइनिशियल वेक्टर जैसे वर्क कर रहे हैं. ओके, सो क्या इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा? यस. और ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? ओके, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग F बोल सकते हैं. ओके, सो दिस F विल बी व्हाट? इन द रूट FB square plus FA square plus 2FA FB cos theta. Okay, so now what is theta here? Okay, the theta must be the angle between A and B. Okay, but as per the question, see, we have given the equilateral triangle. So what are the angles of equilateral triangle? That is 60 degree. Okay, every angle of the equilateral triangle is what? 60 degree. So this angle is 60 degree. So this angle also will be what? 60 degree. But this is a straight line, and this angle is 60 degree. So this angle will be what? That is 180 minus 60. So the angle between FB and FA will be what? 120. Okay. Now let us consider here, if FB is at distance 10 centimeter from here. Okay, the distance between the sides of triangle is what? 10 centimeter. So the distance here is what? 10, and here also the distance between both the charges is what? 10 centimeter. Okay, so distance between B and C is what?
10 centimeter, and between A and C is also 10 centimeter. And what are the charges? A1 and 2, and here also 1 and 2. So the charges are same, distance are same. So can I say both the forces are same? This FA must be equal to what? FB. Why both are equal? Because distance are equal and charges are also equal. How charges are equal? Here we have 1 microcoulomb, here we have 2 microcoulomb, okay, and here we have 1 microcoulomb and 2 microcoulomb. Distance are what? 10 centimeter, 10 centimeter. So can I say this FA will be equal to what? FB. So if I write this FA in place of FB, so this statement will become, this FB can be written as FA square plus, if I write FA here, so FA into FA, that is 2FA square cos 120, and I think every one of us know the value of cos 20 is minus 1 by 2. Okay, so this 2 and 2 will cancel each other. The force will be FA square plus FA square, that is 2FA square. Okay, and this minus sign will come here, and this is what? FA square. So F is equal to, in the root, 2FA square minus FA square. So only FA square will remain here. 2FA square minus FA square is what? FA square. This root will cancel square. The F will become what? FA. ओके, सो जो फाइनल फोर्स है वो किसके इक्वल आने वाला है? एफ ए, और एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो फाइनल फोर्स या तो एफ ए होने वाला है या फिर क्या होने वाला है? एफ बी. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए. सो इट इज एफ ए, दैट इज व्हाट? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? 9 into 10 raised to the power 9 into what are q1 and q2? What is q1? That is 1 microcoulomb. What is q2? That is 2 microcoulomb. It will be divided by the square of the distance between them. What is distance between them? That is 10 centimeter. Okay, so this centimeter will be converted in meter. So if we have to convert the centimeter into meter, we have to multiply it with 10 raised to the power minus 2, and we'll have whole square here. Okay, so after solving this, this 9 into 2 will become 8. Okay, 10 raised to the power minus 6, 10 raised to the power minus 6, this will become 10 raised to the power minus 12, and this minus 12 plus 9 will become minus 3. Okay, now here if you put power 1 here, the 10 raised to the power 1 minus 2, it will become 10 raised to the power minus 1, 10 raised to the power minus 1 minus 2 minus 1, and if we square it, it will become 10 raised to the power minus 2, and this 10 raised to the power minus 2 will become 10 raised to the power plus 2 in numerator. This will become 18 into 10 raised to the power minus 3 plus 2, that is minus 1, or this can be written as 18 divided by 10, or 1.8 Newton. So the force between, or force due to A and C on, so force due to A and B on C will be 1.8 Newton. Let's go for the next. A charge is placed at the center of line joining two equal charges. Okay, so we have two equal charges, Q1, or equal charges are there, Q and Q, we have two charges. Okay, so a charge is placed at the center of the line joining two equal charges. So if I say the center of charge, a charge is kept here, so consider the charge is Q. The system of three charge will be in equilibrium if Q is equal to. So in case of equilibrium, we must know all the forces on the particular charge is 0. The sum of all the forces on a particular charge is always 0 in case of equilibrium. Okay, so we have to find the charge, this small q. Okay, so let us consider this charge. Okay, consider this point is A, this point is B, this point is C. So consider the charge kept at A. This charge will have two forces. Okay, one due to this small q and one due to this capital Q. But if they are in equilibrium, then the force on A due to C and due to B have the summation 0. Okay, so consider the distance between A and C. If it is x,
So what must be the distance between C and B? It is also x. Why? Because it is given here a charge is placed at the center of the line. So if this distance is x, this will also be x. Okay. So what is distance between A and C? That is x. And what is distance between A and B? That is 2x. Why? X plus x. A to B. X plus x will become what? 2x. Okay. So they are in equilibrium. So what I can say, the total force on that point A will be 0. Okay. So what we can write here, the force on A by C plus the force on A by B is equal to 0. How we read? FAC, force on A by C, force on A by B. Okay. So what is value of FAC here? Okay. That is K, Q1, Q2. What is Q1? Q. What is Q2? Small q. That is capital Q into small q divided by distance, that is x square, plus K. What is charge on A? That is capital Q. What is charge on B? Still it is capital Q, just divided by the distance between them, that is what? 2x. Okay. And if I write the square of this 2x, okay, y square, because Coulomb's law says F is equal to Q1 by Q1 Q2 by R square. Okay, that is R square is what? The square of the distance between charges. So what is distance between charge? 2x. What is the square of 2x? That is 4x square, and it will be equal to 0. What this 0 is signifying? That is all the charges in equilibrium. Okay. So what will be cancel here? This K will cancel. How it will cancel? It will go and get multiplied with what? 0. This capital Q will also get cancelled. Here this x square and x square will be cancelled. Okay. So what we will left here? Q plus Q by 4 is equal to 0. So what is value of Q? That is what? Q by 4 in negative. Okay. This plus Q by 4 will become what? Minus Q by 4. So what is the charge which will be kept here for the equilibrium? That is what? Minus Q by 4. So option A is minus Q by 2, B is plus Q by 4, C is minus Q by 4. So option C is correct option here. Let's go for the next. Two particles A and B having charges 20 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? Okay, so we have given two charges, this plus 20 and minus 20 microcoulomb. Again it is saying what? That not experience a net electric force. It means again it is the condition of what? Equilibrium. Okay. So just consider we have two charges. Okay. Positive charge is here and a negative charge here. So here we have three positions where we can have the net force 0. Three position we can have: the position first, position second, and position third. Okay. So let us consider position second. Is that possible that any charge kept in between this positive and negative charge will have zero force? क्या ये पॉसिबल है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में किसी भी चार्ज को मैं रखूं और उस पे फोर्स 0 हो जाए? नहीं, कभी भी इन दोनों के बीच में नेट फोर्स 0 नहीं होगा. कब 0 नहीं होगा? जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा. अगर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, देन इन दोनों के बीच में ही ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां फोर्स 0 होगा. लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस कंडीशन में यहां पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? इट मींस नेट फोर्स 0 हो सकता है या तो फर्स्ट कंडीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे. ओके, तो ये पता करने के लिए कि फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट कंडीशन में 0 होगा या थर्ड कंडीशन पे 0 होगा, यू हैव टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, समझना, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में नेट फोर्स क्या आने वाला आपके पास? 0. इट मींस अगर आपके पास है 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो क्या यहां पर नेट फोर्स 0 आएगा? नहीं. तो क्या इस पोजीशन पे आ सकता है या इस पोजीशन पे आ सकता है? यहां तो आ ही नहीं सकता. बची दो पोजीशन, तो दो पोजीशन में कहां पर कम होगा, कहां किसका मैग्नीट्यूड कम है?
+5 है -2, मैग्नीट्यूड किसका कम है -2 का, तो यहाँ पर वो कंडीशन, यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जहां पर नेट फोर्स क्या होने वाला है 0, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ओके, एक तो इन बिटवीन 0 नहीं होगा और बड़े चार्ज के पास नहीं 0 होगा, कहाँ 0 होगा, वो कहाँ 0 होगा, ओके, स्मॉल चार्ज के पास। ओके, तो सेम कंडीशन अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पर एक +20 माइक्रोकूलम्ब और क्या है माइनस। ओके, तो यहाँ तो 0 हो नहीं सकता नेट फोर्स। एक्चुअली फिर से क्वेश्चन रीड करना, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम्ब एंड -5 माइक्रोकूलम्ब respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? तो क्या हम इन दोनों के बीच में रख सकते हैं चार्ज को? नहीं। क्या यहाँ पॉसिबिलिटीज है? बोल सकते हैं। क्या यहाँ पॉसिबिलिटीज है? यस। ओके, दोनों में से किसको प्रीफर करेंगे हम लोग? वी विल प्रीफर दिस कंडीशन, दिस वन। व्हाई दिस वन? बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ पर आपके पास कम है। सो कंसिडर करें हम लोग कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट सी। ओके, एक पॉइंट सी कंसिडर करें जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ओके, द चार्ज ऑन दिस ए इज व्हाट 20 माइक्रोकूलम्ब, B is what -5 microcoulomb, and the distance between A and B is what 5 centimeter. And let us consider the point C is at distance x from point B. Now we have to find the value of this x. Okay, so अगर C पे net force 0 है, okay, how many forces are working on C? 2 forces. First force due to A, another force due to B. So what are the direction of force due to A and B? Okay, so consider first the force due to A. Okay, A consisting what? Positive charge. So what is the direction of force for positive charge? Yes, it is radially outward. So at point C, this direction must be radially outward. This direction must be what? Radially outward. So can I write that is force due to A? Okay, so what is the force due to B? What is the direction of force due to B? It is negative charge. So for negative charge, the direction of force will be in inward direction, towards the charge. Okay, for positive it is away from the charge, negative it is towards charge. So here it is what? FB. So in this scenario, are we going to add FA and B, or we are going to subtract B and A? Yes, we have to subtract because the directions are what? Opposite. The direction are opposite. Okay, so the net force on this C will be what? 0. But this point C have two forces, that is what? That are what? FA plus minus of FB. Why I have written this minus here? ये माइनस क्यों लगाया हम लोगों ने? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो एफ सी इज 0, सो व्हाट यू कैन राइट एफ ए माइनस एफ बी, और एफ ए इक्वल टू एफ बी. So at that point, both the forces at the point of equilibrium where net force is 0, both the forces will exert equal and opposite forces. Okay, so what is the force due to A? That is K. What is Q1? That is 20 microcoulomb. What is Q2? Okay, I'm erasing all. Okay, just keep in mind this FA will be equal to what? FB. Okay, so here FA equal to FB. What is FA? That is K. Okay, A पे चार्ज कितना है? That is 20 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶. ओके, हमने जो पॉइंट C बनाया तो वहां हम लोग कंसिडर कर ले एक चार्ज that is Q. The charge on C is Q. The distance between this A and Q, ये डिस्टेंस हम लोगों ने कितना कंसिडर किया? X. That is what? 5 plus X whole square. Okay, is equal to K. In case of B, the charge is 5 into 10⁻⁻⁶. Again, the charge on C is Q by divided by X square. Okay, this 5 and X are in centimeter. We have to multiply this by 10⁻⁴. Why 10⁻⁻⁴? Because to convert the centimeter into meter, we will multiply with 10⁻⁻². But square is here to 10⁻⁻⁴. But that will cancel out each other. Okay,
क्या विल कैंसिल, क्या है 10 पावर माइनस 6 will cancel 10 power minus 6, 5 will cancel 20 4 times, q will cancel q again. Okay, so what left here, 4 by 5 plus x whole square by x square. Okay, so this can be written as 4x square is equal to 5x whole square. This 4x square can be written as 2x whole square, 5x square, the square will cancel square, this 2x will be equal to 5 plus x, so this plus x will become minus x, 2x minus x will be x is equal to 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर. सो चेक द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन 85 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकुलम. क्या 20 माइक्रोकुलम से 5 सेंटीमीटर पे? नहीं, 20 माइक्रोकुलम से तो वो 10 सेंटीमीटर पे हो जाए. कैसे? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10. सो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. देखते हैं नेक्स्ट. 85 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम ऑन द राइट हैंड साइड. यस, ओके, -5 माइक्रोकुलम के राइट साइड में कितना 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस, नहीं ये नहीं हो सकता आंसर. एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्ज, तो यहाँ पर मिड पॉइंट में तो होना पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है. तो यहाँ पर मिड पॉइंट या फिर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बिटवीन, यहाँ पर कभी भी नेट फॉर 0 नहीं होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस q are fixed at points 0, a and 0, minus a. Okay, on the y-axis, a point charge plus q is released from rest at the point on x-axis. Okay, q is released from the rest at the point on x-axis. The charge q will be. Okay, so as per the question, okay, we have point 0, a here. Okay, 0, a will be on what? Y-axis. Okay, 0, minus a on negative y-axis. Okay, so two equal charges minus q are fixed at points. Okay, तो यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है minus q, यहाँ पर भी चार्ज रखा है minus q. Okay, a positive charge q is released from the rest at point on the x-axis. Okay, x-axis पे एक चार्ज रखा है. ओके, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव चार्ज Q यहां पे रखा है, उसको रिलीज करा है. ओके, द फोर्स ऑन Q विल बी, जब कोई चार्ज यहां रखेंगे तो इस चार्ज पे क्या फोर्स होगा वो हम लोग को फाइंड करना है. एक बार ऑप्शंस देखें. एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन एट द रेस्ट, मूव टू इंफिनिटी, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो पहले अगर यहाँ बात करें हम लोग, इस प्लस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस प्लस चार्ज पे या प्लस क्यू पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्सेस लग रहे हैं. कैसे? एक इस माइनस क्यू कारण, एक इस माइनस क्यू कारण. क्या इनकी डायरेक्शन बता सकते हैं आप? ओके, नेगेटिव चार्ज के कारण अगर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो ये रेडियली इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, so what will be direction of the force due to the negative charge? नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा या दूर होगा? यस, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा. नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है? रेडियली इनवर्ट. तो क्या यहां पर भी यही डायरेक्शन में होगा? यस. अब अगेन देखो, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे कोइनिशियल वेक्टर्स है तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है. ओके, सो कंसिडर करें कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा. तो ये भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? थीटा. दोनों सेम एंगल क्यों बना रहे हैं? क्यों बनाए दोनों सेम एंगल? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन या डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस कॉमन है, ये डिस्टेंस सेम है, तो एंगल भी क्या होने वाला है? सेम. अगर यहाँ हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें, आई थिंक आपको पता होगा रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है. ओके, तो अगर इस वेक्टर को अगर हम लोग रिजोल्व करें तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. तो जिस एक्सिस पे थीटा आएगा वो कोस होगा, जिस एक्सिस पे थीटा नहीं होगा वो साइन होगा. तो इस वेक्टर के अगर रिजोल्यूशन करें तो एक वेक्टर ऊपर जाएगा
और एक वेक्टर इस डायरेक्शन जाएगा। तो ऊपर जो जाएगा, जस्ट कंसीडर कि इसके कारण जो फोर्स है वो ए मान सकते हैं, इसके कारण जो फोर्स है वो बी। तो अगर ऊपर वाला बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात करते चलो। सो ऊपर वाले की बात करें तो ऐसे भी रात की 11 बज रही है। ओके, सो ऊपर की बात करें तो ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी व्हाट, ए साइन थीटा। ओके, वाई इट इज साइन थीटा, क्योंकि एंगल जिस एक्सिस से बनता है वो cos होता है, तो बचाओ क्या आपका यहाँ पे साइन। सो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये a cos थीटा होगा। ये क्या होगा आपका, a cos थीटा। तो जो फोर्स लग रहा था a, उसके दो कंपोनेंट हो गए। ऐसे ही b के दो कंपोनेंट हो गए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक इसी डायरेक्शन में होगा। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्या वो b साइन थीटा होगा? यस, क्यों? क्योंकि एंगल यहां बन रहा है। तो ये क्या हो जाए बेटा आपके पास, b cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे चारों फोर्सेस के बारे में बात करें, चारों कंपोनेंट, तो देखो a साइन थीटा से b साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है। ओके, इसमें इतना डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट है, a और b इक्वल है, साइन थीटा साइन थीटा, एक दूसरे कैंसिल कर दे। तो नेट फोर्स ओनली किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इसी डायरेक्शन में लग रहा है? ओके, तो अगर मान लो ये दोनों चार्जेस का फोर्स लग रहा है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल ये इधर मूव करेगा। ओके, तो ये मूव करता 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 आएगा, तो आके क्या ओरिजिन पे रुक जाएगा? नहीं, इनर्शिया क्या बोल रहा था, याद करो क्लास 11। ओके, तो अगर ये मोशन में यहां से मूव करते आ रहा है, यहां तक फोर्स लगा, तो सडनली यहाँ रुक जाएगा? नहीं, ये सडनली नहीं रुकेगा, आगे यहाँ ओरिजिन पे आने के बाद ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, सो लेट अस कंसीडर ये ओरिजिन है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रेवल करेगा, यहां तक तो वो एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे आके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, ड्यू टू दिस फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर उसके पास एक और फोर्स लगेगा। अभी अगर चार्ज यहाँ रखा, चार्ज को यहाँ रख दें, तो क्या इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा? यस, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे 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 मूव करेगा। आया समझ में? पहले आपका चार्ज इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। इज दैट क्लियर? चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, मान सकते हैं होल्ड कर रहे हैं। मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन्स एट रेस्ट, क्या ऐसा हो रहा है कि चार्ज यहाँ पे आके रुक रहा है? नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया वो आगे निकल जाएगा, आगे जाके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वापस पीछे आएगा ड्यू टू अगेन, क्योंकि फिर उसके ये वाले फोर्सेस वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मूव टू इन्फिनिटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। Execute oscillatory but not simple harmonic motion, that is the answer। वो oscillation करेगा, वो simple harmonic motion नहीं कर रहा है। चार्ज पार्टिकल आपका बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे मूव करेगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये ओरिजिन है, ऐसे आएगा यहाँ तक चार्ज, यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किसके कारण होगा? यहाँ पर वापिस ये फोर्सेस, ये चार्जेस क्या अप्लाई करेंगे इस पे, एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक motion। So let's go for the next। Two charges plus 5 microcoulomb and plus 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart। Okay, so we have given two charges that are 5 microcoulomb and plus 10 microcoulomb, they are kept at the distance 20 centimeter। Okay, the net electric field at the midpoint between two charges, इन दोनों चार्जेस के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उनके मिड पॉइंट पे। ओके, तो ये दो चार्जेस हैं आपके पास। द फर्स्ट चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम, सेकेंड वन इज प्लस 10 माइक्रोकूलम। तो मिड पॉइंट के बारे में बात करें, दिस मिड पॉइंट विल बी द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर एंड इट विल ऑल्सो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी देखिए 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है, ओके, कंसिडर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे हम लोग को फाइंड करना है। तो सी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ कितने फोर्स के कितने चार्जेस के इन्फ्लुएंस है इस पॉइंट सी पे? दो चार्जेस के, एक तो प्लस 5 माइक्रोकूलम और एक प्लस 10 माइक्रोकूलम। तो क्या इनकी डायरेक्शन सेम होगी? चेक करते हैं। पहले बात करते हैं इस 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम के कारण जो भी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो रेडियली आउटवर्ड होगी? क्या करेक्ट बनाया मैंने? यस। ये किसके कारण है बेटा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। तो बी की डायरेक्शन किस साइड होगी? क्या ये भी करेक्ट है? क्यों? क्योंकि बी इज पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गया आपके पास EB। ओके, सो अब यहां मुझे बताओ EB इज मोर और EA इज मोर। ओके, EB और EA में से बड़ा कौन है? क्या दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे हैं? यस। क्या दोनों पे चार्जेस सेम है? नहीं। चार्ज किसके पास जाता है? बी के पास जाता है। अगर चार्ज बी के पास जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? बी की होगी। तो यहां पे अगर किसी भी चार्ज को मैं रखूं तो वो EB तरफ जाएगा या EA तरफ जाएगा?
इट विल गो इन ई बी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ई बी की वैल्यू ज्यादा है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी, E इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, वाई माइनस, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एंड आई थिंक विल नो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज proportionality constant, q is what, charge, r is what, distance between the point at which we are finding the electric field and the charge. Okay, so what is EB? That is K. What is charge on B? That is 10 microcoulomb, so we'll multiply it with 10 to the power minus 6. Okay, KQ. And what is distance? What is distance? 10 centimeter. So this 10 centimeter can be written as what, 10 into 10 raised to the power minus 2 whole square, minus again EA K. What is charge on A? That is 5 microcoulomb. 5 into 10 raised to the power minus 6. Okay, and distance is what? Again there is 10 into 10 raised to the power minus 2 whole square. Now we can take this K 10 raised to the power minus 6 common, K into 10 raised to the power minus 6 common, and this also could be common. Okay, the value of this will what, the power is 1 here. Okay, 1 minus 2 is minus 1, minus 1 into 2, 10 to the power minus 2, and this will also convert as 10 to the power minus 2. So this 10 raised to the power minus 2 will also be common here. Okay, K 10 to the power minus 6 and this 10 to the power minus 2 are common. So what is left here? 10, here 10 is left. Okay, and here this 5. Okay, so what is 10 minus 5? 5 itself. Okay, so if you put the value of K, what is value of K? 9 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power 6. The value of K is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6. What is 10 minus 5? 5. It will divide it by 10 to the power minus 2. Okay, again this 10 raised to the power minus 2 will become 10 raised to the power plus 2. Okay, so 9 plus 2, 11. 9 plus 2, 11 minus 6. I'm writing it here. Okay, 9 plus 2, 11 minus 6. That is what? 5 or minus 5? This plus 5. Okay, 9 plus 2 plus 11 minus 6, 5, and 9 into 5, that is 45. Okay, so अगर यहाँ चेक करें 4.5 में आंसर आ रहा है, तो अगर पॉइंट यहाँ पर है, इफ यू शिफ्ट द पॉइंट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन वी हैव टू ऐड द पावर। ओके, ये लॉजिक हमको पता होगा कि पॉइंट को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे पावर को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी पॉइंट जहां पर है वी आर शिफ्टिंग इट इन लेफ्ट हैंड साइड, पावर विल बी एडेड हियर, तो वन पोजीशन शिफ्ट किया, दैट विल बी 4.5, दैट विल बी 4.5 into 10 power 6. तो फर्स्ट ऑप्शन इज 4.5 into 10 power 6 directed towards plus 5 microcoulomb, 4.5 10 power 6 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस 10 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों में से ही आंसर है, इसको चेक करें, टुवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम एंड टुवर्ड्स 10 माइक्रोकूलम। तो मुझे यहाँ बताओ, जस्ट कम टू दिस सीन अगेन, यहाँ पर ज्यादा कौन था, EB और EA में से ज्यादा कौन था? यस, EB इज मोर। व्हाई EB इज मोर? क्योंकि चार्ज ज्यादा है। तो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? EB। तो EB की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? ये प्लस 5 माइक्रोकूलम की तरफ है या प्लस 10 माइक्रोकूलम की तरफ है? EB की डायरेक्शन प्लस 5 की तरफ जा रही है, प्लस 10 तरफ जा रही है, प्लस 5 तरफ जा रही है। देखो EB किस डायरेक्शन जा रहा है, हमने बात करी थी ना कि किस चार्ज को जहां रखे किस डायरेक्शन जाएगा, तो डायरेक्शन किधर है, प्लस 5 माइक्रोकूलम की तरफ। तो 4.5 into 10 power 6 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस 5 माइक्रोकूलम। I hope it's clear. Let's go for the next question. Number 10. Two small charged spheres A and B have charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively and are held at a separation of 90 centimeter from each other. Okay, we have two charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb. Okay, and they are kept at a distance of what, 90 centimeter. At what distance from A the electric field intensity will be zero, would be zero. तो हम लोग फिर से उस कंडीशन के बारे में बात करें जो हमने अभी बात करी थी कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस कंडीशन में कहाँ होगी, ये फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं हम लोग। ओके,
अगर इसको प्लस मान ले, इसको माइनस मान ले, तो मान लो ये एरिया फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो होने वाली है? यस, 2 पे जीरो होगी। लेकिन अगर ये प्लस और माइनस है तो क्या इस एरिया में जीरो होगी? नहीं। कहां जीरो होगी? जिसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम है। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन में देखें, ये दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं, दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में ही कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी जीरो। ओके, तो जस्ट कंसीडर फ्रॉम ए बोल रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया? बी। तो हम मान लेते हैं ए से एक डिस्टेंस है एक्स, ए से एक डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं एक्स, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है आपकी? जीरो होने वाली है। ओके, सो दिस एक्स इज फ्रॉम ए, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम बी? ये पॉइंट जो सी होने वाला है उसकी डिस्टेंस ए से तो एक्स है, तो मुझे बताओ कि बी से कितनी डिस्टेंस होने वाली है? इट विल बी 90 माइनस एक्स। क्यों 90 माइनस एक्स? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 90, इतना एक्स है, 90 माइनस एक्स है। तो फालतू की बात कर रहे हैं तो। ओके, चलो ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या बताना आपको? जीरो बताना। फिर से बात करें हम लोग, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके कारण ये डायरेक्शन है, इसके कारण ये डायरेक्शन है, दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी? दैट इज के क्यू इज व्हाट? 40 माइक्रो कूलम 10 पावर माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय, बताओ यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे चार्ज कितना है? 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ओके, व्हाट इज कॉमन हियर? के 10 टू द पावर माइनस 6 को अगर कॉमन ले लें, 10 के इंटू 10 पावर माइनस 6 को कॉमन ले लें, जहां बचेगा आपके पास 40 बाय 90 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे? 10 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर 90 माइनस एक्स है, ये सेंटीमीटर में, ये एक्स स्क्वायर भी क्या है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू द पावर माइनस 2 से, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 10 की पावर माइनस 4 लेंगे। ओके, मतलब दोनों ही क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? 10 टू द पावर माइनस 4। क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। ओके, तो इसको सॉल्व करें हम लोग। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगी। ओके, व्हाट इज के? व्हाट इज के? दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या मैं इसको यहाँ जीरो ले सकता हूँ? यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग? जीरो। ओके, तो अगर यहाँ हम लोग जीरो ले रहे हैं तो ये पूरी क्वांटिटी उधर जाके क्या हो जाएगी? जीरो। ये पूरी क्वांटिटी उधर जाके क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपके पास क्या बचेगा? 40 बाई 90 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं हम लोग 40 बाई 90 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई एक्स स्क्वायर। क्या से क्या कैंसिल हो रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, इस एक्स स्क्वायर को इधर पहुंचा दें हम लोग। ओके, तो जब एक्स स्क्वायर इधर पहुंचेगा, ये एक्स स्क्वायर इधर, तो दिस 4 विल बिकम 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ दिस 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर 90 माइनस एक्स। कैसे लिखा हम लोग बेटा इसको? होल स्क्वायर लिखे, 4 किसका स्क्वायर? 2 का, तो 2x स्क्वायर, 2x whole square can be written as 4x square. Okay, the square and square will cancel out each other. Minus x will become what? Plus x. 2x plus x is what? 3x is equal to 90. So x is equal to what? 30 centimeter. Okay, so I think option B is correct option here. Okay, let's go for the next. An electron enters an electric field with its velocity in the direction of electric lines of forces. What are the electric lines of forces? Electric field का geometrical representation जो होता है उसको electric lines of force बोलते हैं। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में विथ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये भी भाई मतलब खतरों का खिलाड़ी, खतरे से खेलने जा रहा है ना। ये बोल रहा है कि मैं हूं इलेक्ट्रॉन और मैं ऐसी डायरेक्शन से जा रहा हूं जिसमें मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है।
इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल। ओके, चलो पाथ के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अगर मैग्नेटिज्म याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस की डायरेक्शन, ये चार्जेस का जो ट्रेजेक्टरी थी वो सर्कुलर थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में दे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इन सर्कल, नो ये तो हो ही नहीं सकता। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोला, नहीं। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका ये किधर जाएगा उससे मतलब नहीं है, कैसा जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाने वाला था, ना तो सर्कल होगा ना ही ये पैराबोला। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो सारा खेल इन दोनों के बीच में। ओके, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज। तो ये तो आपको पता होगा कि इंक्रीज कब होती है वेलोसिटी, जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मोशन के अपोजिट अगर फोर्स लगा तो डिक्रीज होगी। तो अगर यहां बात करें इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मुझे बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसको इधर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव वाला क्या ये अपने पास आने देगा, नहीं, ये इसको धकेलेगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायरेक्शन इधर है। तो मुझे बताओ ये फोर्स की मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या अपोजिट लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं। जब अपोजिट लगा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड वर्ड यूज किया है यहाँ पर, वो किसी वेलोसिटी से एंटर नहीं कर रहा है। ओके, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक यू all knows the meaning of uniform electric field, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सब जगह क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मैंने प्रोटॉन को रख दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले हम लोग बात करें प्रीवियस क्वेश्चन से बात करें, ये पॉजिटिव है और ये क्या आपके पास नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, यस, पॉजिटिव तरफ जाएगा नेगेटिव वाला। ओके, और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ऑप्शंस देखें, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, इन दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल होने वाले। अगर ये एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन के बारे में बात कर, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अगर एक्सेलरेशन इक्वल होना है, एक्सेलरेशन क्या होना है, इक्वल होना है, तो या तो फोर्स और मास इक्वल हो जाए दोनों के, या फिर प्रोपोर्शनल रहे। तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, क्या दोनों का मास बराबर होता है। मान लो ये एपी प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मान ले, एई इलेक्ट्रॉन का मान ले हम लोग। ओके, यहाँ पे एमपी हो जाएगा, यहाँ पे एमई हो जाएगा। तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है बेटा, नहीं, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्या दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, यस। देखो ये लॉजिक समझना, इन दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स बोलता है F इज इक्वल टू व्हाट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या दोनों पे चार्जेस भी सेम है, यस, दोनों पे चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो दोनों पे फोर्स सेम होगा, समझना इस चीज को, दोनों पे फोर्स सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होंगे। जब मास डिफरेंट होंगे तो क्या एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, नो। ओके, बड़ा नो। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, नो, बड़ा नो। सी द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, मान सकते हैं, यही तो बात करिए हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो एकदम इमोशनल नहीं होना है कि थोड़ा सा सटीक बैठ रहा है, तो मान लो बस, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, देखो सही आ गई ना बात। ओके, दोनों ऑप्शन एक दूसरे को वो कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, अभी जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात करी, तो कहीं ना कहीं किसी के माइंड में जरूर आया होगा, अभी आपके भाई जो अभी सुन रहे हैं ना आप, आपके माइंड में ये बात आई होगी, सर एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये इक्वल कैसे होंगे। तो ये बात मैंने नहीं सुनी आपकी और इस क्वेश्चन ने सुन ली।
ओके, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बेटा? नेगेटिव। लेकिन क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे? यस। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर सी और डी ऑप्शन दोनों साथ में आ रहे हैं तो डी को प्रीफर करेंगे, लेकिन डी की जगह कुछ और होता तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? सी को। मान सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर मान लो सी कुछ और, डी कुछ और होता तो सी को हम लोग आंसर मानते हैं। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा आपको। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। The electric field at distance 3r by 2 from the center of a charge conducting spherical shell of radius r is E। तो आपके पास एक शेल है, ओके, एक कंडक्टिंग स्फीयर ले ले हम लोग यहाँ पर, ओके, और 3r by 2 डिस्टेंस पे लेना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r by 2 मतलब कि उससे बाहर है, ओके। 3r by 2 इज बेसिकली 1.5 of r, 3 by 2 इज 1.5, ओके। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उससे बाहर है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज्ड, ये जो स्फीयर है आपके पास कंडक्टिंग है, शेल ऑफ रेडियस r इज E। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास? E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r by 2, r by 2 तो इसके अंदर होगा, जहां से डिस्टेंस r है तो ये r by 2 यहाँ पर होगा, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मुझे नहीं लगता ज्यादा इसको सोचने की जरूरत है। इनसाइड द सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग शेल आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, ओके। इनसाइड द शेल 0 होती है, याद रखना, ओके। सो आंसर A is correct here. Let's go for the next. A long cylinder contains uniformly distributed charge density rho. The electric field at point P inside the cylinder at distance x from the axis is, okay। So a long cylinder contains uniformly distributed charge density। तो आपके पास एक long cylinder है, ओके। तो इमेजिन करें हमारे पास ये सिलेंडर है, मान लिया भैया, ओके। तो इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, क्या चार्ज डेंसिटी? दैट इज चार्ज बाय वॉल्यूम, ओके। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या है देखिए, आपको रो देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सिलेंडर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। तो इसकी एक्सिस के बारे में बात करें तो दैट मस्ट बी द एक्सिस। ये इसकी क्या होनी चाहिए आपके पास? एक्सिस होनी चाहिए। इस एक्सिस से, ये तो बोल रहा है पॉइंट P inside the x inside the cylinder at distance x। तो मान लो ये एक्सिस से, इस एक्सिस से x पे एक पॉइंट बना रहा हूं मैं P, कितने डिस्टेंस पर? x पे, ओके। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x के, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगी x के, कांस्टेंट होगी या नन ऑफ द अबव, ओके। तो बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो चार्ज सिलेंडर के अंदर हम लोग बात करें तो हम लोग को एक एनक्लोज सरफेस चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं गॉस थ्योरम को, ओके। जब गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो वी शुड हैव अ गॉसियन सरफेस। तो इमेजिन करें हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाए इसके अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास? x है। तो गॉस लॉ क्या बोलता था? दैट इज फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो व्हाट इज फाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अभी कॉस हम लोग 0 डिग्री मान ले, मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में बात करें, ओके। तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से आता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता है आपके पास? फ्लक्स होता है, ओके। तो कैन आई राइट दिस EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? ये कैसे लिखा? ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ओके। व्हाट इज E रिप्रेजेंटिंग? व्हाट इज E रिप्रेजेंटिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो वैल्यू निकालना है, किसकी टर्म्स में? x के। उसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है आपको। E व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? ओके, एरिया किसका लेंगे? इस पूरे सिलेंडर का लेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ सिलेंडर? दैट इज 2 पाई r h। व्हाट इज रेडियस? x एंड व्हाट इज h? हाइट। h मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको h कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू q। क्या यहां से q की वैल्यू आप लिख सकते हैं? क्या होगा? q इज इक्वल टू रो v। q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? रो एंड v। व्हाट इज v? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? pi r square h, and it will be divided by epsilon naught, okay। So r is what? Radius. So here radius is what? x, okay। This h will cancel out, h, pi will cancel pi, this x will cancel the square of x, okay। So the statement will be what? E into 2 rho x divided by epsilon naught। तो E is equal to हो जाएगा rho x by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सनली है?
तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग infinite plane, non-conducting infinite plane having a uniform charge density। याद रखना, non conducting infinite plane का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इज व्हाट? चार्ज बाई एरिया, दैट्स Q बाई एरिया इज व्हाट? A। ओके, सो the electric field due to non-conducting infinite plane having the uniform charge density is the electric field varies with the distance from the plane in accordance with the inverse square law। inverse square law उसको बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आता है। तो क्या यहाँ डिनोमिनेटर में r स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट है। The electric field is independent of the distance from the plane। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट आपको कहीं पे डिस्टेंस दिख रही है, सिग्मा इज व्हाट? चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया। डिस्टेंस दिख रही है क्या? नहीं, इसको होल्ड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। क्या यहाँ पर न्यूमरेटर में कहीं पे आर स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ओके, डी द इलेक्ट्रिक फील्ड वरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। तो डिस्टेंस तो कहीं दिख ही नहीं रही मुझे, एरिया और एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो इसको बताया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। Okay, let's go for the next question number 16। Figure below shows electric lines in which an electric dipole P is placed। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल P रखा हुआ है। Is shown which of the following statement is correct। तो यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी क्या है? ज्यादा है। फिर इंटेंसिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। तो इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब नॉन यूनिफॉर्म होगी, अच्छा यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा? whenever we keep electric dipole in uniform electric field तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। याद करो, P sin थीटा, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता था? P sin थीटा। लेकिन यहाँ पे टॉर्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण क्या होगा? क्या दोनों पे चार्जेस पे फोर्स सेम लगने वाले हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी क्या है आपके पास? ज्यादा है। यहाँ इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो एक तरफ इंटेंसिटी ज्यादा है, एक तरफ इंटेंसिटी कम है, तो ऑब्वियसली एक तरफ फोर्स ज्यादा होगा, एक तरफ फोर्स कम होगा। तो किस पे फोर्स ज्यादा होगा? माइनस क्यू पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। क्या यहाँ फोर्स कम होगा? यस, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? कम। और आगे जाएंगे क्या फोर्स कम होता जाएगा? यस। ओके, तो इन दोनों ही चार्जेस में, अभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, इन दोनों ही चार्जेस पे फोर्स डिफरेंट लगने वाले हैं। इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और इस पे कम फोर्स लगने वाला है। ओके, तो जब किसी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा? द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये तो यूनिफॉर्म में होता है, ये तो यूनिफॉर्म में होता है ना, कि कोई फोर्स नहीं लगता, उस पर टॉर्क लगता है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा फोर्स। ओके, अगर ये यूनिफॉर्म होती तो नेट फोर्स जीरो हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ऊपर लगता है एक नीचे। अगर याद आ रहा हो थोड़ा तो इस टाइप से फोर्स लगते तो उसके अंदर एक प्लस क्यू ही था और एक क्या माइनस क्यू, नेट फोर्स जीरो होता। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। डाइपोल पे फोर्स तो लग रहा है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। क्या डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा क्या इस डायरेक्शन लग रहा है? होल्ड करते हैं। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इसको भी होल्ड करता है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड। ये फालतू बात कर रहा है, छोड़ो इसको। ओके, तो डू दिस थिंग इन योर एग्जाम्स। ओके, एलिमिनेट द ऑप्शन व्हिच कैन नॉट बी करेक्ट। ओके, पर ध्यान रखना जिसको सबसे पहले आप एलिमिनेट करेंगे कभी कभी आंसर हो ही जाता है। चलो, सो इन दोनों के बारे में बात करें हम लोग। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। क्या राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर फोर्स क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो क्या इधर मूव कर रहा है? सिंपल सी बात है यार, 4 बच्चे इधर रस्सी खींच रहे हैं, 2 बच्चे इधर से खींच रहे हैं, तो बस रस्सी तो इधर जाएगी ना। तो इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। आया समझ में? मतलब इधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स कम है, तो नेट फोर्स तो इधर डायरेक्शन में आने वाला है। सो द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, नो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट 17 question। A positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring of radius R. A small test charge Q is placed at the center of the ring। ये जो Q है यहाँ पर,
यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ज रखा और ये पूरी चार्ज है और रिंग है, इट्स नॉट ए स्फीयर। ओके, एक रिंग है हमारे पास। ओके, तो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं से डायरेक्टली यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है इफ q इज ग्रेटर देन जीरो। अगर q ग्रेटर देन जीरो मतलब इसका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इफ q इज ग्रेटर देन जीरो and is displaced away from the center in the plane of the ring, is displaced from the center in the plane of the ring मतलब यहां से उठा के इस चार्ज को मैं यहां लेके आऊं, डिस्प्लेस कर दूं। ओके, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड द सेंटर। तो जब इस चार्ज को उठा के यहां लेके आऊंगा तो क्या है, चार्ज दौड़ के वापस अपने सेंटर पे आ जाएगा। तो मेरी बात सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल होने वाला है। तो क्या ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नहीं। क्या यहाँ रुकने देंगे, नहीं। तो ये वापस भाग के कहां पर आ जाएगा, सेंटर। ये भाग के कहां पर आ जाएगा, सेंटर में। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, ये ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। ओके, तो मान लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं। इफ क्यू इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज है। इफ क्यू इज लेस देन जीरो एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव चार्ज है और इसको सेंटर से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, इट विल नेवर रिटर्न टू सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट हिट्स द रिंग। अगर इस नेगेटिव चार्ज को यहां रखूं तो ये वापस इधर आना ही नहीं चाहेगा, ये जाके इस रिंग से टकरा जाएगा। क्यों ना टकराएगा, टकराएगा ही टकराएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है भैया। ओके, सी बोल रहा है इफ q इज लेस देन जीरो, अगेन नेगेटिव चार्ज के बारे में बात है। इफ q इज लेस देन जीरो इट विल परफॉर्म SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन करेगा क्या, इस टाइप से मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करेगा क्या। ओके, ये बोलना ये चाह रहा है कि नेगेटिव चार्ज को मैंने मान लो यहाँ रख दिया तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो हाँ। क्या इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, हाँ ना, ये वाले भी तो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर आएगा, लेकिन थोड़ा जब इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो थोड़ी देर तक ये क्या करने वाला है, ये ऑसिलेट करेगा और उसके बाद जाके इससे टकरा जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। क्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद द प्लेन ऑफ द रिंग फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो। क्या पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सेंटर से मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम में। क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, नहीं, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये तो रॉन्ग है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो डी हो गया, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी from an isolated conducting plane। ओके, तो आपके पास एक प्लेन है, हम लोग प्लेन को कुछ ऐसा बना सकते हैं। ओके, I'm not that much good at diagrams but I am good। Okay, so a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane। तो मतलब isolated conducting plane है, उससे d डिस्टेंस पर हम लोगों ने क्या ही रख दिया है, एक चार्ज रखा है। Okay, the field at point P on the other side of the plane। इस प्लेन के अपोजिट साइड डायरेक्शन में पॉइंट है P। ओके, द फील्ड एट पॉइंट P मतलब कि फील्ड की बात करना है P पे। ओके, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस कंडक्टिंग सरफेस के पास रखें तो क्या सारे के सारे नेगेटिव इसके एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों भैया, दैट इज इंडक्शन। याद करो थोड़ा सा। ओके, पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। जब सारे ही नेगेटिव इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव क्या यहां पर आ जाएंगे। यस, समझ में आ रहा है, मतलब ये यहाँ जो पोलरिटी होने वाली नेगेटिव होने वाली, यहाँ जो पोलरिटी होगी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो ऐसी होने वाली है। क्यों होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बताना है। ओके, द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन P, अदर साइड। ओके, इस पॉइंट से इस साइड यहाँ बताना आपको।
ओके, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और अवे फ्रॉम द प्लेन है, मान सकते हैं। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, क्या ये टुवर्ड्स द प्लेन आ रही है यहां से? नहीं, यहां पर हो सकती है क्योंकि नेगेटिव, लेकिन यहां पर टुवर्ड्स द प्लेन है, नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। डायरेक्टेड रेडियली अवे, तो यहाँ तो रेडियली की बात हो रही है, रेडियली हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं हम लोग, तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं है, तो रेडियली हो नहीं सकता। रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, तो रेडियली आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन। इज दैट क्लियर? Let's go for the next. The electric flux through the surface. Four surface are given here. First, second, थर्ड, फोर्थ। पहले सरफेस को कंसिडर कर ले हम लोग, फर्स्ट वाले को। यहाँ चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ भी रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे भी कितना रखा है प्लस क्यू। क्या सारी सरफेस में चार्ज सेम है? तो याद रखो गॉस ने ये बात बोली थी कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू होता है ये चार्ज होता है एनक्लोज्ड। कौन सा चार्ज होता है? एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, तो क्या यहाँ चार्ज सेम है? क्या चारों में चार्ज सेम आ रहा है आपके पास? ओके, अगर चारों में चार्ज सेम आ रहा है तो फ्लक्स तो सेम होने वाला है, समझना। अगर भैया चार्ज सेम है तो आपका फ्लक्स भी क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन 4 इज द लार्जेस्ट। क्या फोर्थ में सबसे ज्यादा फ्लक्स है? नहीं भैया, सब में बराबर है। क्या थर्ड में सबसे ज्यादा है? नहीं। क्या सेकेंड इज सेम एज थर्ड? हाँ, बट स्मॉलर देन 4? नहीं। इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स? यस, इन सभी का फ्लक्स क्या होने वाला है? बराबर। क्यों? Why? Because the charge is same. Okay, the net flux totally depends on the charge enclosed by the surface. Okay, so I think it is clear to you guys. Let's go for the next question. Number 20. A hemisphere is uniformly charged positively. Okay, a hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is, again you have to find the direction of electric field. A hemisphere is uniformly charged positively. Okay, so consider we have a hemisphere. Okay, एक हेमिस्फीयर है जो पॉजिटिवली चल रहा है, इट्स लुकिंग लाइक कटोरा। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये तो हो गया सेंटर। तो अगर इसके बारे में बात करें, क्या है डायमीटर होगी? यस, लेकिन क्या ये अवे फ्रॉम द सेंटर है? नहीं, ये तो अलोंग द सेंटर, मतलब सेंटर से मिल गया। तो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें तो ये क्या होने वाली है? इस पर्टिकुलर स्फीयर की, हेमिस्फीयर क्या होने वाली है? रेडियस होने वाली है। ये क्या होने वाली है? रेडियस। तो इतने डिस्टेंस पे क्या ये एक और डायमीटर होने वाली है? हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस है, तो मतलब ये बात कर रहा है ना, क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर तो अबे यही होने वाला है आपका, थोड़ा 3D व्यू में समझना है इसको। ओके, अबे यही होने वाला है। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट रखूँ तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रीड द क्वेश्चन अगेन। द हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। चलो बात करते हैं। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल इस हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, इसलिए हम बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं, मल्टीपल पॉइंट्स है। ओके, हम लोग सिर्फ 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली सभी सेम डिस्टेंस पे बोल पाएंगे, एक्सट्रीम नहीं वर्ड को सर्व कर सकते हैं, लेकिन 2 हम लोग अपोजिट पॉइंट्स को यहाँ कंसिडर करें। जस्ट कंसिडर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन, मान लो ये आपके पास ए कनेक्ट कर रहा है, ओके, और ये बी कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो एक कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो अवे होगी या इनवर्ड होगी? अवे होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव है। क्या बी भी पॉजिटिव है? पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो जाएगी? इस चीज को समझना, ये ए की डायरेक्शन होगी और किसकी डायरेक्शन होगी? बी की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? नाउ अब ए अगर इधर लाई कर रहा है तो क्या इसको रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर याद हो तो। ओके, सो अगर ए को रिजोल्व करें, सो इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द डायमीटर, इस डायमीटर के पैरेलल अगर लाइन खींचे, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा है? आई थिंक आपने अगर
इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हुआ तो एक डेरिवेशन याद आ रहा होगा इससे, ये वो डेरिवेशन का ही एप्लीकेशन है। ओके, जहां दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये वही सीन है। ओके, ये अगर थीटा है तो ये होगा a cos थीटा। ओके, जिस एक्सिस पे थीटा है ये cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a sin थीटा। ओके, सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास b cos थीटा, ये हो जाएगा b, सॉरी इट विल बी b sin थीटा। ओके, सो जल्दी जल्दी से बात करते हैं, b cos थीटा और a cos थीटा वैल्यू कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट है और साथ साथ में इक्वल भी है। तो आपके पास जो डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ जा रही है बेटा, ऊपर जा रही है। देखो b sin थीटा और a sin थीटा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो फिर से बात करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। क्या इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन? देखो यार, ये आपके पास डायमीटर थी, तो क्या नेट डायरेक्शन ऐसे आ रही है? हाँ, लग तो ये रहा, देखो ये डायरेक्शन ऊपर जा रही है, मान सकते हैं पैरेलल टू डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है? नहीं जा रही, इसको हटाना पड़ेगा। एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स डायमीटर, तो किसी एंगल पे तो आ नहीं रही है। एट एन एंगल टिल्टेड, अब यहाँ पे भी आ रही है, तो इट इज व्हाट परपेंडिकुलर डायमीटर सी है। ये आपके पास डायमीटर है और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये डायमीटर है आपके पास और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आ रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन।